Hello everyone, welcome to your own channel Adarsh English Classes. And today I'm going to discuss sample paper of class 9 mathematics. Students, as we know that your annual exam is going on and at this time there is a great need to prepare and there is also a great need to set sample papers and practice sample papers. So there is a need of practice, so as much as possible this is going to be very fruitful for the students who have math and who is appearing in the coming days. So I would like to tell you that you must go through this sample paper before your examination. And now I'm going to discuss one by one all question along with their answers. So you can see clearly that यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची संभाग का ये संतांत्र परीक्षा सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है। क्लास 9 का है ये और मैथमेटिक्स है। सो बच्चों, चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं। एटी मार्क्स का ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। कह रहा है The questions paper contain 38 questions. Total 38 questions है and all questions are very compulsory. And question paper is divided into 5 sections. Section A, B, C, D and D. 5 sections में ये डिवाइड रहेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। राइट, चलिए यहाँ से आपका सेक्शन ए शुरू होता है। सेक्शन ए यहाँ से शुरू हो जाता है, जो कि क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। राइट, पहला ही सवाल आपका कह रहा है, सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज। एवरी रेशनल नंबर इज, ऑप्शंस आर a natural number, an integer, a real number or the whole number. So as we know that very well, your option will be C, a real number. Second है, which of the following cannot be decimal expansion of an irrational number? So your answer will be, यहाँ देखिए पहला का आंसर क्या है, अ रियल नंबर, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ देखिए, रेशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, and every rational number is a real number but not necessarily a natural number, integer or the whole number. Now let's see your second question. Which of the following cannot be decimal expansion of an irrational number? So your option will be option third, non terminating and non repeating. Explanation is, irrational numbers have non-terminating and non-repeating decimal expression. For example, आप लोग यहाँ देखिए कि क्यों है वो नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों है वो, यहाँ पर आप लोग देखिए एक्सप्लेन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग algebraic expression is a polynomial in variables? अब आपको बताना है थर्ड में से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से ए 0, नॉन डिफाइंड एंड इनफाइनाइट। नाउ योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। 3 नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, which of the following is a zero of the zero polynomial? तो कौन सा यहाँ जीरो का पॉलिनोमियल है ये बताना है। आंसर विल बी all of the above. Option D will be correct answer, all of the above. Option D.
These all are the zero of the zero polynomial. सब क्या है? बहुपद का शून्य है. Next, question number 5. The point at which two coordinate axes meet is called the. एक्सेस पे जो पॉइंट मिलता है, मीट करता है, क्या कहते हैं उसको? योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी ऑरिजिन, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. Point -4 and -5 lies in the. Your answer will be option C, third quadrant. In the third quadrant, both x and y coordinates are negative. Next question. Question number 7. If bracket -1 and k is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is. k का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालना है. और कैसा इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, k का वैल्यू. ओके, सो योर ऑप्शन विल बी 5, सी, ऑप्शन सी. Substitute x is equal to -1 in the equation. So your calculation will be 2 brackets -1 plus 3k is equal to k and -2 plus 3k is equal to k. So it will be 3k minus k is equal to 2 and finally it will be 2k is equal to 2. K is equal to 1 will be your answer. Now next question. A linear equation in two variable has dash solution. So your option will be option D, indefinitely many. A linear equation in two variable represents a straight line which has infinitely many options. इसके infinite options होते हैं, बहुत सारे points होते हैं. Now the 8th number. Number of points common to two parallel lines is or are dash. So it will be your answer option D, 0. Explanation is parallel lines never intersect. So they have 0 common points. Now the next question. Question number 10. As per Euclid's postulate, if a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles. यूक्लिड के अनुसार यदि कोई सीधी रेखा दो स्ट्रेट रेखाओं पर पड़ती है और एक ही इंटीरियर कोण में मिलकर दो राइट एंगल से कम होते हैं तो क्या होता है वो? आगे है देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely so meet on that sides on which. इसका आंसर है, so your option will be option A, the sum of angles is less than two right angles. ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे है ये. रूल क्या कहता है आप लोग देखिए. यहाँ कहता है एज पर यूक्लिड्स पोस्टुलेट इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन सो मेक एन इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर एंगल में बनाते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स मीट ऑन द दैट साइड ऑन विच. सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, द सम ऑफ
angles is less than two right angles. दिस इज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट. ये कैसा है? ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. If two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines are in the ratio 2:3, then the greater of two angles is. अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो कि दो पैरेलल लाइन्स है, दो समांतर रेखा है जिसको इंटरसेक्ट करने के लिए एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा के एक ही ओर से स्थित दो इंटीरियर एंगल 2:3 के रेशियो में है, तो दोनों एंगल्स में कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर कौन सा होगा. ठीक है, तो बड़ा कौन सा होगा? योर ऑप्शन विल बी डी 154. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. लेट्स द एंगल बी 2x and 3x. So 2x plus 3x is equal to 180 and it will be 5x is equal to 180. Then it will be divided and cancel होकर क्या बचेगा? 36. x is equal to 36. So greater angle is equal to 3x is equal to 154. Right. Next question. Option D. Next question number 12. The region of a circle bounded by an arc and the radius of the circle is called its. किसी रीजन का जो सर्कल है बाउंडेड है एक आर्क से और उसका रेडियस सर्कल को क्या कहते हैं? घिरे एक आर्क से, आर्क और उसके वृत्त की त्रिज्या से घिरे हुए एक सर्कल क्या कहलाता है? योर आंसर विल बी, सो इट विल बी ऑप्शन बी, सेक्टर कहलाता है वो. ठीक है, सेक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. The side of a triangle are 15 centimeter and 17 centimeter and 8 centimeter. So what is its semi perimeter? Your answer will be, ट्राइंगल का साइड क्या क्या है? 15, 17 और 8 है. तो सेमी पेरीमीटर पूछ रहा है. इट विल बी ऑप्शन डी 20 मीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 प्लस 17 प्लस 8 एंड डिवाइड 2. सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. 15 प्लस 17 प्लस 8 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे. आंसर क्या आएगा? 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The volume of a cone is 160 pi and 160 pi centimeter cube and its height is 10 centimeter. What is its radius? रेडियस पूछ लिया है एक कोन का. ठीक है, कोन का क्या पूछ लिया है? रेडियस. सो इट विल बी ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर. कैसे? यहाँ देखिए, वॉल्यूम निकालेंगे इसका. फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो और इधर वॉल्यूम का जो वैल्यू है पुट करके करना है. तो पाई पाई ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा. फिर 1/3 इंटू 10 बचेगा. उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आर निकल करके आएगा आर 48. सो आर स्क्वायर 48. आर का स्क्वायर इधर चला जाएगा 48 पर और तब ये क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द स्ट्रेट विथ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज. तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो कि 6 साइड से है. ठीक है, सो योर आंसर विल बी 26 सेंटीमीटर.
ऑप्शन 26 सेंटीमीटर। कैसे है ये, इसको देखिए। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग है। S इज इक्वल टू 6 + 8 + 10 एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। अगर इस सब कुछ ऐड करके 2 से करेंगे इतना आएगा। एरिया निकाल लेंगे तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है उस पर बिठा देना है। कैंसिल करने के बाद योर आंसर विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे देखो, इसको और एक्सपेंड किए हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a + b + c बाई 2। सबको बिठा दो, 6 8 10 बाई 2 करके क्या निकलेगा, 24 को 2 से डिवाइड करके 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए हेरोन्स फार्मूला से भी इसको किया गया है। देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, then our answer will be 26 centimeter. Now next, तो 15 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल्स subtended by an arc at the center is dash the angle subtended by it and at any point of the terminating or remaining part of the circle। सवाल कह रहा है कि एक आर्क है जो कि केंद्र पे बनाया गया, सेंटर पे बनाया गया है, और वो जो उसका एंगल जो बन रहा है वृत्त के शेष भाग के किसी भी पॉइंट पर उसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो वो जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर होता है। उस डैश को फिल करना है। योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, डबल। नाउ यू कैन सी क्लियरली। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल थ्योरम द एंगल subtended by an arc at the center of the circle is always twice and the angle subtended at any point on the remaining part of the circle, right? Now the next question, question number 17, if the radius of a cone is doubled and the height remains the same, so the volume will, कह रहा है कि रेडियस, कोन का रेडियस क्या है, डबल है और हाइट सेम है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। योर आंसर विल बी बिकम्स 4 टाइम्स, वो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। या ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन अ फ्रीक्वेंसी distribution the mid value of the class is 10 and the width of the class is 6, so upper limit of the class is, इसमें अपर क्लास का लिमिट, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास निकालना है। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा 10 और 13। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन डी 13। एक्सप्लेनेशन है, मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट है बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 है। तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा सारा वैल्यू पुट करके, वैल्यू है लेट द लोअर लिमिट बी एक्स, मान लिए क्या कि जो लोअर लिमिट है वो कितना है, एक्स है। तो ये x+6 बाई 2 करके 10, ठीक है। तो 2x + 6 बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। इस तरह करके जब इसको कैंसिल किया जाएगा, 2x + 6 इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, इसके लिए इसलिए
2x इज इक्वल टू 14, 14 x इज इक्वल टू करेंगे तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो x क्या हुआ, x का वैल्यू 7 आया है, वो लोअर है, ये लोअर है, और अपर लिमिट पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा। और मे बी कि इट विल बी 10, ज़रा इसको देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा अपना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में जो बोला है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल्ड एंड हाइट रिमेन्स द सेम, हाइट सेम रहेगा लेकिन कोन का रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बिकम 4 टाइम्स। कैसे हो जाएगा, चलिए इसको हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, चलिए देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज गिवन इन द फॉर्मूला, दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है ना, बिकम 4 टाइम्स। यही था आपका जो ये छूट गया था, आपको बताना था 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 18 हो गया, अपर लिमिट्स कितना है 13 या 10, 10 भी हो सकता है, ऐसे एक्चुअल आंसर 13 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या कह रहा है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, देन बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए बी इज इक्वल टू वॉट। तो सारा वैल्यू दिया है आपको, ए बी का पूछ लिया है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो रीजन कह रहा है इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू एंगल इक्वल साइड्स आर इक्वल। आंसर है बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, कि हाँ assertion भी सही है और reason भी सही है, और reason जो है वो सही explanation कर रहा है किसका, assertion का, कथन का। ठीक है, your option will be option A, ऑप्शन ए 19 का ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन में देखिए जरा, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें। ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट वी हैव अ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, फिर से एक आया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 इज assertion, the angle of a quadrilateral are x, x minus 10 and x plus 30 and 2x, the smallest angle is equal to 58. So reason sum of the angles of a quadrilateral is 360. तो assertion क्या कह रहा है कि जो quadrilateral होता है वो इतना इतना है, तो स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 58। रीजन कह रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर कह रहा है रीजन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सो आंसर विल बी बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, कि हाँ रीजन और assertion दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। तो 20 का आंसर कितना है, 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। राइट, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स
फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब, ठीक है, एंड प्लस 5 क्यूब। तो कह रहा है कि आप विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि बिना क्यूब को कैलकुलेट किए हुए इसका आंसर फाइंड आउट करो। सो विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब डायरेक्टली क्या करेंगे हम, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ठीक है, जो कि गिवन है। यूजिंग आइडेंटिटी इसको लगाना है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला लगाना है। सो उसके बाद उसका वैल्यू 1 बाय 1 पुट करना है, ए का, बी का और सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेंस द आंसर इज 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 21 का आंसर क्या है, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, in which quadrant following points lie? ठीक है, आंसर इज 2 quadrant, 4 quadrant, x एक्सिस नो क्वाड्रेंट और 0 6 का y एक्सिस नो क्वाड्रेंट। ये आपका 22 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या लिखना है, 4 सॉल्यूशन लिखना है इस इक्वेशन का। एक इक्वेशन दिया गया है उसका। तो ये है आपका इक्वेशन 4x प्लस 3y माइनस 1 इजिकल टू 11। ये इक्वेशन गिवन है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इजिकल टू इधर आएगा तो 1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 4, ये भी हो सकता है। x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 0, ये भी हो सकता है। और इधर देख लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Ramya paid 27 for a book kept for 7 days. So write a linear equation in two variable to present the given case. ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी में पहले 3 दिन के लिए क्या लिया जा रहा है, एक फिक्स प्राइस है, फिक्स चार्ज है, और उसके बाद एवरी डे के लिए भी एक एक्स्ट्रा चार्ज है। रामिया ने 7 दिन के लिए बुक रखी तो उसको 27 रुपया देना पड़ा। तो दिए गया जो पैसा दिया गया उसको कैसे प्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन बना करके दिखाना है, ठीक है। तो इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो चार्ज हम ले लेंगे सबका, चार्ज फॉर 3 डेज का लेट बी एक्स, एडिशनल चार्ज है वाई, और टोटल चार्ज है 27। तो कैसे बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स प्लस 4y इजिकल टू 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक और का भी क्वेश्चन है, तो और वाला भी हम लोग देख लेंगे। और क्वेश्चन में कह रहे हैं, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी का किराया सिटी में इस तरह को फॉलो कर रहा है, ज़रा देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर इज 8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट
Distance is fare 5 per kilometer. So, taking the distance covered as x kilometer, total fare is y. Write a linear equation for his information. इसके लिए भी एक linear equation बनाना है. सबसे पहले हम लोग टैक्सी फेयर पहला फर्स्ट किलोमीटर कितना चला था 8 किलोमीटर चला था. ठीक है, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़ लगा था. रिमेनिंग जो डिस्टेंस था उसके लिए उसने 5 रुपया पर किलोमीटर लिया. सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x किलोमीटर और टोटल फेयर कितना हो गया y. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. रिमेनिंग डिस्टेंस एट ₹5 किलोमीटर पर किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y किलोमीटर. इक्वेशन कैसे बनेगा ये? y इज इक्वल टू 8 + 5 ब्रैकेट x - 1. ठीक है, सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x + 3. लीनियर इक्वेशन में बोला है, देखिए लीनियर इक्वेशन में बन गया, यही हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 is saying that a chord of a circle is equal to the radius of circle. So find the angle subtended by the chord as at a point on the mirror, point of the minor r and also at a point on the measure. तो एक पॉइंट माइनर और एक पॉइंट मेजर का देखना है. नेक्स्ट आंसर देखेंगे. A chord of circle is equal the radius. So find the angle subtended. यही था आपका सवाल. आंसर है let the radius is equal to chord. chord के लिए is equal to r. So एक isosceles triangle, the angle subtended by the chord at the center is 60 degree. तो माइनर एंगल और मेजर एंगल देखना था. ठीक है ना. एंगल एट माइनर आर्क 60 एंड एंगल एट मेजर आर्क 120. ठीक है, ये था आपका आंसर. नेक्स्ट 26. क्वेश्चन नंबर 26. फैक्टराइज x³ + 13x² + 32x + 20. क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन नंबर 27. Express 0.2353535 in PQ form where P and Q are integer and Q not equivalent 0. ये बनाना है. इस पर एक और भी दिया गया, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन. तो P/Q के फॉर्म में करना था, डेसिमल है, आंसर हो जाएगा. लेट x इज इक्वल टू 0.2353535. So 1000x is equal to 235.3535 and 100x is equal to 2353535. ठीक है, इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000x - 100x is equal to 235.3535 - 23.53535. ये घट करके क्या हो जाएगा? माइनस होगा तो 900 हो जाएगा. इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा. उसके बाद जो बचा है उसको कैंसिल करवाइए. जो कैंसिल करके आता है दैट विल बी योर आंसर. इतना तो आप कर ही सकते हैं, कैंसिल करिए. नाउ जो और वाला क्वेश्चन था ना, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में इसको कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन पहले बनाएंगे हम. उस पर परपेंडिकुलर इन 1 यूनिट का लेंथ रखेंगे और पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे. फिर उस पर जो √1² + 2² इज इक्वल टू
अंडर रूट 3, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। It will be your answer. Next. Question number 28. Express x to y is equal to 4 as a linear equation in two variables in standard form. So indicate the value of a band C. Also check whether under root 2 and 4 under root 2 is solution of the given linear equation or not. लीनियर इक्वेशन बनाना है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। आंसर विल बी स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे होगा? x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट में क्या है? अंडर रूट 2 माइनस 2 ब्रैकेट 4/-2 and close bracket is equal to 4. So it does not satisfy the question. ठीक है, ये जो सवाल है क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29. प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो लाइनें एक दूसरे को आपस में काट रही है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अपोजिट एंगल इसमें क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल। नाउ ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम, इधर देखो, ठीक है, देख लिए। आंसर विल बी टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट डी। तो एक पॉइंट है डी पर, जहाँ पर क्या कर रहा है, इसको काट रहा है। प्रूफ करना है AOC is equal to BOD and AOD is equal to BOC. At the point of intersection 0, the sum of adjacent angles on a straight line is 130. Therefore, angle AOC plus AOD is equal to 38 and BOC plus BOD is equal to also 38. So, but angle AOD is equal to BOC from the above equation. अब हम क्या करेंगे? ऊपर में दिए हुए इक्वेशन के अनुसार, therefore angle AOC plus angle AOD is equal to 180 and angle BOC plus BOD is equal to 180. तो अब ऊपर के इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम क्या मान लेते हैं? एंगल AOC इज इक्वल टू BOD, और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं सो वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टर लाइन if a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. प्रूफ करना है दो लाइनें क्या होती है? आपस में पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अगर इफ द ट्रांसवर्सल इंसेक्टर, अगर दो तिर्यक इंसेक्टर्स रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, एंड वो क्या करती हैं? टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो वो अगर किसी समद्विभाजक समांतर वो अधिक किसी संगत कोण के एक युग्म को समद्विभाजक समांतर उसके है, पैरेलल है, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो
दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, बराबर है। ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा को दो रेखाएं खींचे जिससे संगत कोनों के एक युग्म का समद्विभाजक समांतर होना भी चाहिए और ये भी प्रूव हो जाए कि दोनों रेखाएं क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल है। ये है। ठीक है, चलिए एक रेखा खींचते हैं अब हम लोग। ये देखो, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल इंसेक्टर है जिसको हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, फिगर देखा आपने। चलिए, सॉल्यूशन है द ट्रांसवर्सल AD intersects the two lines PQ and RS। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए PQ and RS पे किस तरह से इसको किया जा रहा है, PQ RS। ठीक है, ये देखो, ये आपका PQR और ये S, उस पर ये रेखा गई है। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, एट पॉइंट BC पर है। सो रिस्पेक्टिवली BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। चलिए देखते हैं एंगल ABQ कहाँ है। ABQ देखो जरा सा, AB ABQ। ठीक है, ये ऐसे एंगल बन रहा है ABQ, ऐसे एंगल बन रहा है। And CF is the bisector of angle BCS, as BE is the bisector of angle BABQ, then तब हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BAE इज इक्वल टू 1/2 एंगल ABQ। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह से हमारा निकल जाएगा क्या, एंगल BCF इज इक्वल टू 1/2 एंगल BCS। सो सिंस BE एंड CF आर पैरेलल हो जाएगा किसके, AD इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय corresponding एंगल्स एग्जाम एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCF, दोनों का वैल्यू पुट हो जाएगा 1/2 एंगल ABQ इज इक्वल टू 1/2 एंगल BCS। ठीक है, 1 कट जाना है, 1 हाफ हाफ कट जाना है, ये और ये खत्म, जो बच जाएगा। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल्स एक्सियोम PQ पैरेलल है किसके, RS के। ये प्रूव हो गया किस फिगर से, तो इस फिगर के जरिए प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। If two intersecting chords of a circle make equal angle with diameter passing through their points to intersection, prove that the chords are equal। तो प्रूफ करना है क्या, कि समान इक्वल एंगल एट द सेंटर पर, समान पथ पर केंद्र पर समान कोण बनता है कि नहीं, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। लेट बी AB एंड CD बी टू इक्वल कोड्स। चलो मान लेते हैं AB और CD क्या है, दो इक्वल कोड्स हैं किसी एक सर्कल का जिसका सेंटर क्या है, 0 है। अब कह रहा है कि ज्वाइन करिए OA OB और OC एंड OD को ज्वाइन करिए एंड ट्राइंगल OAB बन जाएगा और OCD बनेगा। ठीक है, OA और OC रेडियस बनेगा, OB और OD रेडियस ऑफ दिस सर्कल बनेगा, ABCD जैसा कि गिवन है। ठीक,
तो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, हैंस एंगल AOB एंड एंगल COD इज इक्वल टू क्या है, दोनों बराबर हैं। देयरफॉर इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि हाँ अगर इक्वल कोड्स रहेगा तो सबटेंडेड हो जाएगा इक्वल एंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। If x is equal to 2 plus under root 3, so find the value of x square plus 1 by 2x or 1 by x square. आंसर विल बी, सवाल है इफ x बराबर इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप जाएगा, देन 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट 3 एंड प्लस 3, सो इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। लास्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस अंडर रूट 3 एंड 7 प्लस अंडर रूट 3, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। दैट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। इफ ABCD is the rhombus and PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and D, so respectively, show that the quadrilateral is the rectangle। रेक्टेंगल का क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया है, दिया हुआ है रेक्टेंगल यहाँ पर, इसका क्वाड्रिलेटरल पूछ लिया है, राइट। तो जैसा हमने फिगर में देखा है, इन रोम्बस ABCD PQRS एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो ये सब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स हैं। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा हम इसको कहेंगे क्या, PQRS a rectangle since opposite sides are equal parallel। It will be your answer। Question number 34। A capsule of medicine in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm की एक कैप्सूल है दवा की, जिसका स्पेयर कैसा है, डायमीटर शेप है वो स्पेयर शेप में है और डायमीटर 3.5 है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, तो कितना उसको चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए उस कैप्सूल में डालने के लिए। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल्स ऑफ मेडिसिन, तो इसमें दो चीज़ पूछा है, दो चीज़ निकालना होगा। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन स्पेयर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना होगा। तो गिवन है यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर 3.5 दिया है, सो रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5 का 2 हो जाएगा ना, और निकल करके कितना आएगा, 1.75 निकल के आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.75 का क्यूब। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 4/3 पाई का वैल्यू बिठा दिया है 3.14, इसको कैलकुलेट करके इतना आया है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर क्या, वॉल्यूम निकल के आ गया है 22.45। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया हो जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पुट कर देंगे, सबका मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके बाद कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 38.48, राइट।
Next, question number 35. The run scored by the two teams 1 and 2 on the first 60 ball in cricket match are given below. तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है स्कोर का। देखिए, नंबर ऑफ द बॉल्स और टीम 1 और टीम 2। तो ये नंबर ऑफ द बॉल्स देख रहे हैं आप, टीम 1 और टीम 2 है। प्रेजेंट द डेटा ऑफ द बोथ टीम ऑन द सेम ग्रुप बाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा रिप्रेजेंट करना है। नाउ आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। देखो, ये नंबर ऑफ बॉल्स कितने बॉल डाले गए, टीम 1 और टीम 2 है। तो इसे आप देखो, पहला है 1 से 6, दूसरा है 7 to 12, तीसरा है 13 to 18, नेक्स्ट है 19 to 14, 25 to 30, 31 to 6, 37 to 42 and 43 to 8, 49 to 54 and 55 to 60। ये टेबल है। अब इसमें आपको भरना है। तो देखो कैसे रन हम इसमें ऐड करेंगे। 2 + 1 + 8 + 9 + 4 + 5 6 + 10 + 6 + 2 इजिकल टू क्या, 53 इजिकल टू 53। सिमिलरली नेक्स्ट इसी तरह है दूसरा स्टेप भी। इसको क्या करना है, इसको भी ऐड करना है। 5 + 6 + 2 + 10 + 5 + 6 + 3 + 4 + 8 + 10। गुड। ऐड रन्स फॉर टीम 2 के लिए रन ऐड करना है। 5 + 6 + 2 + 10 + 5 + 6 + 3 + 4 + 8 और 8 के बाद क्या हो जाएगा, 8 के बाद 10 और इजिकल टू 59 हो जाएगा। नाउ तो कौन सी टीम जीतेगी, पहली टीम का स्कोर बन रहा है 53 और दूसरी टीम का स्कोर बन रहा है 59। ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा टीम विनर हुआ है, टीम 2। टीम 2। योर आंसर विल बी टीम 2 won द मैच बाय 6 रन। ठीक है ना, 6 रन से मैच जीत जाता है कौन, टीम 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the section E. Question number 36. A reputed school of merit decide to conduct different types of the tour. तो मेरिट का एक अच्छा सा स्कूल ने क्या डिसाइड किया कि टूर लेके जाएंगे बच्चों को और उन लोग को एजुकेट करेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग to tour of different classes in represented by an equation. Number of the student who planted to visit historical monuments 1/5। ये सब ध्यान रखना, 1/5 देख रहा है monuments। Square of the total number of the student in class 10 and number of the student who planned visit odd age homes 4 times, 4 times। Total number of students in the class 10 while 20 students will visit botanical garden। Now you can see clearly, देख रहे हो। चलिए अब एक एक करके आंसर करना है। Using above information express the whole number of students going to tour of children different classes as a polynomial in terms of 10। So 10 is number of students in class 10। पहला सवाल का जवाब है
आंसर इज क्वेश्चन नंबर 36. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10. मान लिए कि x है. क्लास 10 में बच्चों की संख्या कितनी है? x मान लिया. नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु प्लांट विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. कितने लोगों ने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखा है? तो 1/5. ठीक है, 2 रिकॉर्ड मिल गया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान टू विजिट ऑड एज होम्स. तो कितने लोग ऑड एज होम जा रहे हैं? 4. ठीक. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विल विजिट बॉटनिकल गार्डन. तो जो बच्चे बॉटनिकल गार्डन जा रहे हैं उसकी कितनी है? 20 है. राइट. अब अगला पूछ रहा है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म. ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है. आंसर क्या बनेगा? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्लस ऑड एज होम्स और द बॉटनिकल गार्डन. देखो यहाँ कैसे बनाया गया है. t इज इक्वल टू 1/5 x² प्लस 4x प्लस 20. सेकेंड का है इफ x इज इक्वल टू 25 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? एक ट्रायंगल दिया गया पार्क का ABCD. साइड है उसका 120, 80 और 50 का. गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड. धनिया वहाँ का जो मालिक काका है उसने क्या लगा दिया है? फेंस लगा दिया है. सी मेक्स इज बाउंड्री अराउंडेड गार्डन बाय मेकिंग 2 राउंड्स ऑफ फेंस. तो उसका 2 राउंड लगाया है फेंस का. ठीक है, आप लोग अपना देख सकते हो क्वेश्चन. दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक. नेक्स्ट. तो ये साइड है 120 है, 80 है, 50 है. स्पेस गेट के लिए 3 मीटर है. राउंडिंग फेंसिंग है. सबसे पहले क्या करना है? फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क. ट्रायंगुलर पार्क का आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. कितना है? 120, 80 और 50. ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 250. टोटल लेंथ ऑफ द वायर चाहिए फेंस को कवर करने के लिए 2 राउंड में. टोटल लेंथ 2 इंटू पेरीमीटर प्लस गेट तक जाएगा. उसके बाद 2 बिठा देना है. 50 माइनस 3 कट के ये क्या हो जाएगा? माइनस होकर के 294 आ जाएगा. फाइनल आंसर क्या होगा? तो फाइनल आंसर ऑफ दी ट्राइंगल ABCD 50 और ABD क्या होगा फाइनल आंसर? तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 949. 38 का आंसर क्या हो जाएगा? 949. Now you are very welcome. Happy to help anytime. Thank you. Thanks for watching. कोई भी डाउट होता है, कहीं भी कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. नेगेटिव बात कोई भी नहीं लिखेगा. सब लोग इफ्यूमिज्म का यूज़ करेंगे और पोलाइट मैनर में सवाल पूछेंगे. क्या पूछना है? राइट. चलिए इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ कि आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो, आप बहुत अच्छा करें और बहुत ही बढ़िया स्कोर करें आप. मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं. आप लोग ज़रूर सेट को देखना, समझने की कोशिश करना और बेहतर करने की कोशिश करना. आप लोग अपना 110% देना. बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.